Good evening and welcome to this episode of Election Radar. In the morning we were in Gorakhpur, by the evening we are in Varanasi because that was an important Phase 6 constituency, Gorakhpur. And this is the most important Phase 7 constituency. The Lok Sabha constituency of the Prime Minister, who by the way is in town. He interacted with students who returned from Ukraine, students who are from Varanasi or from Uttar Pradesh. Many political meanings are also being associated. But you know, the larger question is that Phase 6 and 7 is all about the battle for Purvanchal. So can Yogi Adityanath and Narendra Modi save their Purvanchal fortress? That is going to be our first part of our program. We've also managed to speak to the two challengers. NDTV's Dr. Pranoy Roy spoke to Akhilesh Yadav and Mayawati in a rare interview. Mayawati never speaks. In that rare interview with Mayawati, we'll play out excerpts in just a short moment from now. But first, let's quickly get you the poll percentage. About 53% is the polling percentage right now. This is till 5 p.m., which means it will get revised as we go along. We also asked this question on the Coup app on whether Yogi and Modi can save their Purvanchal fortress. So we've got two comments on the Coup app. Akshit Ahuja writes, will it be the same for Yogi or does he need to level up his game? Devraj says, seems like this time it's not easy for Yogi. So people using their intelligence are sharp as ever and they're drawing their own conclusions with the manner in which statements are being made and words are being spoken. All right. Let's now start the program with a very important development that took place this evening, surprise element, that of the Prime Minister interacting with students who were evacuated, who returned from Ukraine, were from Varanasi and Uttar Pradesh. The opposition feels that this is an attempt where the government has launched a massive PR blitzkrieg around its Operation Ganga. Whereas the BJP says that this is nothing but a very compassionate side of the Prime Minister as well as other members of the BJP are engaged in this exercise. What you're seeing right now is a short clip of that interaction between the Prime Minister and the students. It took place right here in Varanasi, where the Prime Minister is here for campaigning for the UP polls. Let's listen in. जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहां से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। अ सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर
भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे, मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स अब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था उस 24 को, तो 25 को हम सारे राशन वाशन की लाइन में लगे, हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ भी। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेजते? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई है। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। Using an evacuation crisis too for political gains in Uttar Pradesh, because the Prime Minister was in Varanasi and he chose to interact with students from Varanasi and Uttar Pradesh in a poll-bound state, perhaps to send a message. That's the reading of the opposition. But can it actually tilt the fortunes in favor of the BJP in Purvanchal, or are the dynamics totally different?
Saurabh Shukla now standing by. Saurabh, you have been extensively reporting on how the issues of Purvanchal, while they are the same as the rest of UP, the mighty bull, unemployment, but at the same time, it's not polarization, but the caste dynamics that are majorly at play in Purvanchal. What's your assessment? Sanket, before talking about the point you have raised, I would like to tell you that this time the polling percentage you have also mentioned in the beginning, that is almost 53.34%. And in 2017, the polling percentage was 56.52%, which is almost 3% more. So this time the polling is 3% less. We are yet to get the final data from Election Commission, and in 2012, Sanket, the polling percentage was 55.19 when Samajwadi Party formed the government, and when BJP formed the government, the polling percentage was 56.52, which is almost 56 close to 56.60. So polling percentage is less in this phase as well, especially in the urban areas. We have seen the less polling in Balrampur, in the urban area of Gorakhpur Sadar, where Yogi Adityanath is contesting. Apart from that, Balia Sadar seat, where Darshankar Singh is there against Narad Rai of Samajwadi Party. And now, when we talk about eastern part of Uttar Pradesh, we have been discussing this since morning. The caste is dominant factor. That caste social engineering, what BJP did in 2017, that class combination is with Samajwadi Party. That Rajbhar was with BJP. He never won assembly seat, but he had become an MLA with the help of BJP in 2017 from Zahurabad constituency of Ghazipur. Dara Singh Chauhan, Ronia Rajput, another non-OBC important backward class. Swami Prasad Maurya, non-Yadav OBC leader. So this was the social combination BJP had in Purvanchal. But now this social combination is with Samajwadi Party along with Yadav vote bank, which is also a very important vote bank. But BJP is heavily banking on Nishad Party and Anupriya Patel, Apna Dal as well. But I personally feel that in rural pockets where BJP is heavily banking on free ration, but the boys, the youngsters, there is some undercurrent I see, which is about unemployment. Absolutely, there is a issue of stray cattle is there, but unemployment, they are saying that in last 3 years, there was not a single army camp which was organized, and now they are over age. And especially Sanket, you will understand, you also from Ayodhya and from Kanpur, we understand it in the rural, in rural part of our areas. If you go in the morning, you will see these young boys running and practicing, and their dream is to go into army and serve the country. But this time, from last 3 years, there were no army camps. So they are very angry with that. Apart from the paper leak, TET, SSC, GD, other issues are there as well. Very important elections. And I'm going to Jaunpur from Balia. In last assembly election, BJP had won Balia. They got 5 seats out of 7 seats. And in 2016, Prime Minister Modi launched Ujjwala Yojana from Balia, which played an important role in BJP's victory in 2017. And when Prime Minister Modi came to Balia last week, he had said that he has that emotional connection with Balia. But what people have decided, we don't know. We'll come to know on 10th. But we are now moving towards the last leg of campaign. But one, again, very important point we have seen, less voting in urban areas of Uttar Pradesh from I think that is a very important point that Saurabh is raising. And this is something we have seen consistently across all phases. On an average, voting has been low by about 2 to 3%. What does this mean? Is this a vote against the incumbent? Is this a vote of no confidence, basically no vote against the incumbent? Or is this disadvantage the opposition, that is the Samajwadi Party, that the votes that could have gone to the SP have not gone to the SP? Who wins in a situation like this? That's the tricky bit. Thank you very much, Saurabh Shukla, for joining us. In the meanwhile, what happened in the morning, where I was in Gorakhpur, Chief Minister Yogi Adityanath cast his vote. He came out and then he decided to do what I can only call a belated damage control, redefining 80-20. According to him, 80-20 now means that 80% of the seats BJP is going to win and
the opposition is actually contesting on the remaining 20%. Brand new spin. राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद, भ्रष्टाचार, माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। 20% सीटों में बंटवारा होगा, जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। All right, stopping for a short break at this moment on Election Radar. But when we come back, exclusive interviews with the two challengers to Yogi Adityanath. Mayawati, for the first time in this campaign season, has spoken out. She spoke exclusively to Dr. Roy and also Akhilesh Yadav, who's been speaking a lot, but there were some real posers that were put to him. Watch these two exclusive interviews after a short break. The BJP is dividing Hindu Muslim. Is that working? देखिए, उन्होंने कोशिश कैराना से की, मुजफ्फरनगर से की। पहले फेस से ही वो चाहते थे कि डिवीजन इस तरह का हो। आप उनकी भाषा देखिए, जो उनकी लीडरशिप है, क्या भाषण दे रही है। BJP is saying with you, law and order will go worse. नहीं, वो तो स्टैटिस, अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो NCRB के आंकड़े हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो यूपी में है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स कहीं हैं तो यूपी में है, अगर कहीं भी IPS फरार है तो यूपी में है। एक व्यापारी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी के, वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, वसूली के लिए उसे मार दिया जाता है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। तो कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? लेकिन आम लोगों से बात करें तो बोलते जी पहले रंगदारी थी, किडनैपिंग थी, उठा के ले जाते थे, अब नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, आप टाइमलाइन चेक करना, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि यूपी में पहले अपराधी और इस तरह के लोगों को उठा ले जाते थे, उसी दिन आगरा में एक बच्चे का अपहरण हुआ और व्यापारी का पैसे 25 लाख रुपए नहीं दे पाया। 2 दिन बाद उसके बच्चे की हत्या हो गई। आज भी अगर अखबार उठा करके देखेंगे, बेटियों की छेड़छाड़ की लगाम घटनाएं आप देख सकते हैं। अगर ये बताइए कि अगर इस बार आप चुनाव जीत गए तो पिछली बार से, जो अब नई सरकार चलाएंगे, पिछली बार से कैसे अलग होगी? देखिए, क्योंकि आप जब सरकार में और मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं तो बहुत सारी चीजें आप नई सीखते हैं। इस बार क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहे हैं, पहले चलाने का मौका मिला था। अगर जनता मौका देगी तो मैं समझता हूँ हम लोग मिलकर के पहले से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। इस क्राउड में इतना जोश है, इतना बड़ा क्राउड, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा इतना कैंपेन नहीं किया इस बार। वो ठीक बात है कि थोड़ा कम कर लिया? मेरा अपना देखो, काम करने का मेरा तरीका होता है। जी हाँ। जब मेरा पहला प्रोग्राम आगरे में हुआ था, मैंने उस दिन बता दिया था, पूरे देशवासियों को बता दिया था, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते। ना मैं कभी रोड शो करती हूँ, ना मैं गली मोहल्ले में जाती हूँ। हमारा काम करने का तरीका, मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने लोगों को कैडर के आधार पे लोगों को तैयार किया। तो हमें दूसरों की नकल नहीं, बल्कि अब तो दूसरी पार्टी के लोग हमारी नकल कर रहे हैं धीरे धीरे। एक और चीज लोगों कह रहे हैं कि बीजेपी और आप थोड़ा तालमेल है। नहीं आपका अब ये तो विरोधी लोग बोल रहे हैं ना, ये जो विरोधी पार्टियां हैं, ये खास तौर से समाजवादी पार्टी, उनका तो इतना बुरा हाल है सपा का जो है। जब मैं पूरे यूपी में गई हूँ, खास तौर से पश्चिमी यूपी में कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ उनका अधिकार बनता था वहाँ तक तो इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं, मतलब तो वो तो वैसे ही इनसे बहुत ज़्यादा खफा है, इस बार नाराज है मतलब। लेकिन हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भी हम आपको बताएंगे, जो लोग कह रहे हैं हमने अति पिछड़े वर्गों को, मेरे ख्याल जितने हमने टिकट दिए किसी भी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए है। मैं जो बोलती हूँ, अगर मान लीजिए किसी कारण से
स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिला। मैं जो आपको बता रही हूँ, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे तब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। हाँ देखो मैं फंस जाऊंगी। वेरी गुड टू टॉक। एसपी खराब ज्यादा है कि बीजेपी खराब ज्यादा है? दोनों ही जो पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत बढ़िया टॉकिंग, बहुत बढ़िया।